इसलिए बनाई क्योंकि कोई तो हो जो दूसरों की जिंदगी के लिए संघर्ष करे। ईश्वर ने कहा कोई ऐसा चाहिए जिसका दिल सेवा से भरा हो, जो रोज 24 घंटे काम करने के लिए खुशी से तैयार रहे, कोई ऐसा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ईश्वर ने कहा मुझे कोई ऐसा चाहिए जो जीवन और मृत्यु दोनों देख सके, जो रक्त से न डरे, जो त्याग के लिए हमेशा तैयार रहे। So myself, Monica Venkarwal, Faculty College of Nursing, Saneshwari, and along with 24 batch are here to show the skit on the evolution of nurses from Florence Nursing Nightingale era till today. Scene 1. 19th century healthcare facilities condition. In 19th century, care of sick was still closely allied with superstitions, religion, and magic. People used to believe in tantras much more than the healthcare facilities. प्रणाम बाबा। आओ बच्चा बैठो, बताओ क्या परेशानी हुई। कोई बात नहीं बच्चा, बाबा के ध्यान पर विश्वास रखो और ये चूरन पकड़ो, इसका इस्तेमाल करेगा। बाबा चूरन खा के पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल बच्चा, दवा दारू ने कुछ नहीं रखा है। इस चूरन का इस्तेमाल करो, सारी बीमारी दूर भागेगी। धन्यवाद बाबा। लो बेटा चूरन खा लो। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? Scene 2. Birth of Florence Nightingale. During this dark period of nursing, on 12th May 1820, a baby girl was born into privilege and wealth in the city of Florence, Italy. She was raised in a world of luxury, art, and education. From the outside, it seemed her future was already written, that is marriage, society, and quiet comfort. Scene 3. Convincing her parents for nursing as a profession. Let's see how Nightingale approached her parents and told them about her ambition to become a nurse. मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है आपको? मॉम डैड, मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है कि मुझे आगे जाके एक नर्स बनना है। नर्स? तुम जानती हो ना हमारे समाज में लोग नर्स को कितना कम महत्व देते हैं, और मैं चाहती हूँ तुम हमारे वर्ग की बाकी लड़कियों की तरह एक ऊंचे घराने में शादी करके अपना जीवन व्यतीत करो। मॉम डैड, जब भी मैं किसी बीमार आदमी को देखती हूँ या उसकी सेवा करती हूँ, मुझे सुकून सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मैं उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी ला पा रही हूँ, और यही एहसास मुझे नर्सिंग की ओर खींचता चला जा रहा है। फ्लोरेंस, मुझे तुम्हारे भविष्य की बहुत चिंता है। मैं समझती हूँ तुम ऐसी जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं बनी हो। मॉम डैड, मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है, समझा है, और नर्सिंग केवल मेरा सपना नहीं है, ये मेरी पहचान है। बेटा तुम्हें पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, तुम्हें इसमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर भी तुम एक नर्स ही बनना चाहोगी? मॉम डैड, आप दोनों ने ये तो मुझे सिखाया है कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और आज जब मैं ये करने जा रही हूँ तो क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर हम तुम्हारे साथ हैं। Scene 4. Journey to become a nurse. After much of the struggle with her family, Nightingale enrolled herself as a nursing student in Lutheran Hospital, Germany in 1844. She returned to London after her studies and took a nursing job in Middlesex Hospital, London. She was highly dedicated and impressive in her performance, and hence she was promoted as a superintendent within a year.
France, and Turkey. The war would become infamous not just for its violence but for the condition faced by the soldiers. Scene 6. In condition of soldiers despite being provided by medical care. Hospitals were overcrowded, unsanitary and ill-equipped. Disease ran rampant, cholera, typhoid and dysentery claimed more lives than bullets. Scene 7. Letters sent to Nightingale. British public demanded change, so Florence Nightingale was called upon. Nightingale received a letter from Secretary of War in late 1854 asking her to organize a corps of nurses to take care of the sick and fallen soldiers in war aside. Scene 8. Arrival of team of Nightingale with nurses. She sailed to the front line with a team of 38 nurses. What she found in the military hospital was worse than she could have imagined. Filthy rats, faulty food, poor sanitations. The death rate was staggering. Let's see how she cope up with all. ये देखिए यहाँ पर हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। सफाई नहीं, दवाइयाँ देने के बाद भी मरीज मर रहे हैं। डॉक्टर, हमें यहाँ की सफाई पे ध्यान देना होगा। साफ चादरें, ताजा भोजन और ताजगी भरा वातावरण लाना होगा। ठीक है मैडम नाइटिंगेल, आपको जैसा उचित लगे आप वैसा कीजिए। मैं नहीं चाहती मेरे देश के सैनिक और अधिक बीमार हों। तो और भी गंभीर होते जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये सब करना व्यर्थ है। अभी हमारा कर्तव्य है सैनिकों की सेवा करना और हाँ, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। ठीक है मैम, आप जैसा चाहती है वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। हम हमारे सैनिकों का उपचार पूरा अच्छी तरीके से करेंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं खुद जाके साफ सफाई की बिल्कुल निगरानी अच्छे से करूँगी। सैनिक होकर जिस प्रकार देश की सेवा कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। मैडम, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। Scene 9, awarded by Queen Elizabeth, which was later named as Nightingale Award. When she was back to London, she made Peter hero's welcome and the Queen rewarded her work. She was also given a cash reward of $250,000. आपने अपनी सेवा और समर्पण से पूरे विश्व को प्रेरित किया है। ब्रिटिश काउंट की ओर से मैं आपको इस सम्मान से नवाजित करना अपना गौरव समझती हूँ। Scene
was used by her as an establishment of St. Thomas Hospital. नर्सिंग कोई छोटा काम नहीं है, ये समर्पण है, त्याग है और लोगों की सेवा करने का एक प्रयास है। मैम, ये आपके बिना संभव नहीं था। आपने नई रास्ता दिखाई, नई उम्मीद दी, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। हर वो हाथ जो लोगों की सेवा करता है वो ईश्वर के हाथ होते हैं और इसे कभी छोटा मत समझो। मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर मेरी रोशनी किसी के जीवन को रोशन करती है तो ऐसा समझो मैं कभी गई ही नहीं। She asked no praise, she sought no crown, yet lifted the fallen and bent gently down. A light in the silence, a guide through pain. Her legacy like a lamp shall forever remain. So now it's time to see where is Govinda Singh. जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ईसीजी की तारों से जुड़ती है तो उसे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। अ नर्स who provides care to the patient and manages a wide range of medical conditions. जब मैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होकर अपने मरीजों के स्वास्थ्य का निर्णय लेती हूँ तथा उन्हें दवाइयाँ लिखती हूँ तो मुझे एडवांस प्रैक्टिशनर नर्स कहते हैं। मैं हूँ रजिस्टर्ड नर्स। भारत हो या विश्व, भारत हो या विश्व, मेरी सेवा हर दिल में एक विश्वास और आराम की कहानी है। मैं पीडियाट्रिक नर्स हूँ। छोटे बच्चों की देखभाल करना ना ही सिर्फ मेरी ड्यूटी बल्कि जिम्मेदारी है और खुशी भी। जब लोगों के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ तो मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। उन शरतों में भी जब मैं किसी की मुस्कुराहट की वजह मानती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। मैं सिर्फ अस्पताल में काम नहीं करती बल्कि हर गली हर घर पे अपनी सेवा पहुंचाती हूँ। मेरा काम सिर्फ दवा देना नहीं बल्कि लोगों को बीमारी से पहले जागरूक करना है। हाँ, मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स हूँ। मैं हूँ ओटी नर्स, जिसे एनेस्थीसिया नर्स भी कहते हैं। मैं ऑपरेशन थिएटर की अनसीन वॉरियर जो हर इक्विपमेंट का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। डॉक्टर का मेरे बिना फोकस नहीं दिखता क्योंकि मैं पूरी ओटी का परफेक्शन करके रखती हूँ। जो खुद रोशनी बनकर हर नर्स को बनाती है, वह नर्सिंग एजुकेटर ही तो है जो आने वाली हर फरिश्ते को बनाती है। मैं एक नर्सिंग एजुकेटर हूँ। जब अपने हेल्थ प्रोफेशनल के दायरे को तोड़ के सत्ता में आके प्रजा की आवाज बनती हूँ तब मैं पॉलिटिकल नर्स कहलाती हूँ। मैं हर मरीजों का इलाज तो कर ही रही हूँ पर उन हर सवाल का जवाब भी ढूंढ रही हूँ जो कल की नर्सिंग को नया रास्ता दिखाएगा। नर्स हूँ लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का हक भी कमाया है। डिग्री मेरी पहचान में मेरी सोच का सबूत है, इसलिए मैं एक डॉक्टरेट नर्स कहलाती हूँ। मैं सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करती
करती, मैं सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करती, मैं बीमारियों का उपचार भी करती हूँ। मुझे पता है, मुझे एक नर्स के रूप में मैं गर्व करती हूँ, इलाज करती हूँ और एक क्लिनिकल रिसर्चर के रूप में इलाज कर सकती हूँ। मेरा काम सिर्फ मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि भारत सरकार के कई नियम जैसे नर्सिंग शिक्षा, अभ्यास और नीति को आकार देना है। भारत सरकार के जितने भी गाइडलाइंस हैं मेरे ही तजुर्बों का नतीजा है, इसलिए मैं नर्सिंग एडवाइजर कहलाती हूँ।